Good evening, everyone. Welcome to another session. It's a very auspicious day, and that's the day of Guru Purnima. So, we welcome you all on this special talk on Guru Purnima and Guru. Why do we need to have Guru? And what is the relevance of having Guru in our life? So we start with the simple thing that because we all know it's an auspicious day and it's a day of Guru. So let's start with a short prayer so that we can connect to the Supreme Being, who's Divine Father, Divine Mother, to our beloved and respected Guru, Grandmaster Choa Kok Sui, all the holy gurus, holy masters, holy angels, healing angels, all the gurus. We humbly invoke for divine light, divine love, divine guidance, help, protection and blessing. We thank you. So, Guru. The word is amazing. And people generally get confused when it comes to Guru, and sometimes some people are into one school, and when they learn the teachings from the other school, they think that whether we have to follow this Guru or that Guru. So hope so with this session today a bit of clarity will come, and whosoever is your right Guru, you'll be able to connect better. So Guru is made out of two words, Gu-Ru, right? That is, Gu is darkness and Ru is dispeller. The one who removes darkness, that is ignorance from our system, is Guru. Why do we celebrate Guru? First of all, Guru Purnima is the day is celebrated and started from India. When there are many reasons, like Hindus celebrate for Ved Vyasa's teachings, and basically Lord Buddha gave his first sermon to his disciples in Uttar Pradesh on this day. And also Lord Shiva started transforming the yogis, the Saptarishis, through yoga on this day. So that's the relevance, and that's how it's a day marked as respect, honor to all the gurus who will be helping us, who are transforming our lives for eons and eons of time. So when we come to Guru, that's the dispeller of darkness or the remover of ignorance. What is ignorance? No, darkness does not mean अंधेरा आ गया है हमारे सामने और वो अंधेरे को हटा देते हैं. Not the literal meaning of darkness. It has a different meaning. So darkness is in the form of three ways in our life. So dark is in our life in three ways. कौन सी तरह से darkness है? डार्कनेस है हमारी फिजिकल लाइफ में. कैसे है डार्कनेस हमारे अंदर? हमारे पास अनकंट्रोल्ड टेम्पटेशंस हैं. फूड को लेके हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स, और हम बहुत सारी जगह मनी को स्पेंड करते हैं जहाँ हमें नहीं करना चाहिए, और sometimes we do a lot of expenditure which is useless. And the third form of darkness is that we enter into relations which are not good for us. ये सब चीज़ें तभी होते हैं जब हमारी फिजिकल लाइफ में डार्कनेस होती है, और हम बहुत बारी कोशिश करें तब भी हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते. तो कैसे चेंज कर सकते हैं? दैट्स विद द हेल्प ऑफ गुरु. ये फिजिकल लेवल की डार्कनेस है. इमोशनल लेवल की डार्कनेस कहाँ होती है? हमारे अंदर बहुत सारा एंगर है, क्रिटिसिज्म है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, बेवजह का स्ट्रेस है, नेगेटिव इमोशंस हैं, और हमें समझ नहीं आता है कि इन इमोशंस को हम कैसे अपने अंदर से हटाएं. सो फॉर दैट ऑल्सो गुरु हेल्प्स. और फिर हमारे अंदर डार्कनेस है, हमारे थॉट्स में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने आप को लेके, औरों को लेके,
और तब भी नहीं हमें समझ आता है कि हम उस डार्कनेस को कैसे हटाएं। तो वो डार्कनेस आती है गुरु से। आप सोचिए, ये 3 लेवल की डार्कनेस, हमारे फिजिकल लाइफ की टेम्पटेशंस, हमारे इमोशंस जो हमें ओवर पावर करते हैं, और हमारे थॉट्स जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, उसको कौन ठीक कर सकता है? दैट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ गुरु। और वो गुरु जो अपने गुरु से बहुत ज़्यादा डिवोटेड है। So Swami Vivekanand, we all have heard of, who started this Ramakrishna mission, and whose guru was Swami Ramakrishna Paramahansa. He has very clearly mentioned that Guru is not God. Yes, you follow the teachings of Guru, you follow the teachings to transform yourself, but you do not have to be blind. You do not have to think that Guru is God. So that is what we need to keep in mind. And also Swami Vivekanand said that it's only because of his guru he realized that connection with God is only possible when we render services to humankind. स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको ये बताया कि अगर तुम्हें गॉड को पाना है, अब तुम चाहते हो गॉड के साथ कनेक्ट करना, तो ह्यूमैनिटी की सर्विस करो। जितना आप इंसानों की मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनके लिए सर्विस करोगे, आप उतना जल्दी गॉड के नज़दीक आओगे। एंड दिस ट्रेडिशन ऑफ गुरु एंड डिसाइपल हैज़ बीन फ्रॉम लाइफ टाइम्स। अगर हम देखें कि लॉर्ड कृष्णा अर्जुन के गुरु थे, बट आई थिंक मैनी पीपल डू नॉट नो कि लॉर्ड कृष्णा के भी गुरु थे। कौन थे उनके गुरु? संदीपानी मुनि। कैन यू इमेजिन द ग्रेट अवतार जो पूरा दुनिया के चला रहे हैं, उनके अपने गुरु थे। सेम इज जब अर्जुन को एक टाइम पे रियलाइज हुआ, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा उसके फ्रेंड थे, उसके कज़न थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे रादर, उनको रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ अब ऐसे कुछ इमोशंस हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं मेरे हार्ट के अंदर, मेरे माइंड के अंदर, जिनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। देन ही वेंट टू लॉर्ड कृष्णा एंड सेड दैट आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। एंड दैट डे ऑनवर्ड लॉर्ड कृष्णा स्टार्टेड teaching him, guiding him as a guru. Same way, it's not only in the olden times, it's still there. Guru हमें हमेशा ही चाहिए। स्टीव जॉब्स का हम सब ने नाम सुना है, and many people are Apple fans, right? उनको मोबाइल, लैपटॉप एप्पल का ही लेना है। And many people are aware, but many people do not know that Steve Jobs was also a disciple of Paramahansa Yogananda ji. उनका मोबाइल, उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर, उसके ऊपर अगर किसी एक फ़ोटो होती थी तो वो हमेशा एक बुक की, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और ये भी कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स ने कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को ऑनर करना था, तो ही गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एक पैक बना के दिया गिफ्ट का, और उस गिफ्ट में एक सबसे प्रेशियस चीज़ थी स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में सारा गुरु डिसाइपल का रिलेशन ही बताया है ब्यूटिफुली। सो स्टीव जॉब्स ऑल्सो यूज टू फॉलो योगानंद जी। ऐसे ही योगानंद जी, बिकॉज वो भी एक टाइम पे एक नॉर्मल इंसान थे, तो वो बहुत अच्छे से हम लोगों की तरह ही थे, जिसमें बहुत सारी गलतियां की हैं। तो वो बताते हैं कि मैंने गॉड की सर्च में हिमालयाज़ चला गया, और मैंने कहा कि मुझे तो गॉड हिमालयाज़ ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में कहा जाता है कि गॉड को पाना है तो हिमालयाज़ में जाओ। बट वहाँ पे थोड़े ना गॉड थे। एंड व्हेन ही केम बैक, उनके जो गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको बहुत अच्छे से अपना लिया, बहुत प्यार किया, और उनको एक्चुअली में गॉड रियलाइज क्या होता है वो फील कराया। सो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा कि कोई ऐसा कर सकता है कि जिस गुरु को मैं छोड़ के चला गया, वो गुरु मुझे ही अपना रहा है, और वो गुरु मुझे इतना प्यार कर रहा है क्योंकि वो मेरे अंदर
परफेक्शन लेके आ रहा है, ऐसा गुरु मुझे कहाँ से मिलेगा? एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ दैट योगानंद जी ने अपनी जितनी भी पढ़ाई की है, उनकी पढ़ाई कलकत्ता में हुई है और ग्रेजुएशन तक उन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा था और वो इंग्लिश बोलना भी नहीं जानते थे अच्छे से, राइट? बट अमेरिका में जाके उन्होंने हज़ारों लोगों को लेक्चर देते थे, दैट टू इन इंग्लिश। कैन यू बिलीव दिस इज़ पॉसिबल? जिसने बचपन से इंग्लिश नहीं बोला है और वो इंग्लिश में लेक्चर दे रहा है, एंड दैट टू फ्लुएंटली। दैट्स ओनली पॉसिबल विद द पावर ऑफ अ गुरु. He was told by his guru, you go to America, you will be able to teach many, many people. And many people in America will turn your disciples. And his lectures, if you search on Google, they were amazing. One cannot imagine कि इतना difficult English कोई एक ऐसा इंसान बोल सकता है जिसने कभी इंग्लिश ना बोला हो पहले. That's the power of a guru. अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे गुरु हैं, और उससे पहले ये चीज़ आती है कि हमें गुरु चाहिए क्यों अपनी लाइफ में. वाई डू वी नीड गुरु? गुरु नहीं है तो क्या है? डार्कनेस रिमूव करने के लिए गुरु चाहिए. प्लस अब एक टाइम आता है जब हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपने प्रॉब्लम के सल्यूशंस खुद ढूंढ सकें, तो हमें गुरु चाहिए. बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा एक्चुअल में गुरु है कौन. तो जब आपको आपका गुरु के दर्शन होते हैं या आप गुरु के साथ कनेक्ट करते हैं तो 3-4 चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं. यू कैन राइट देम डाउन और ऑब्जर्व कर सकते हो. पहला चेंज क्या होता है कि आपकी लाइफ से कोई ना कोई डिजीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाता है. कोई ऐसी बीमारी जो बहुत मुश्किल से आपके साथ लगी होती है वो आपको छोड़ के चली जाती है. आपकी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है. या फिर आपकी लाइफ से कोई एडिक्शन छूट जाता है. ऑल ऑफ अ सडन सिगरेट, अल्कोहल या कोई ऐसा एडिक्शन है जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है, वो छूट जाती है. दैट मीन्स आप अपने गुरु के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. ये एक पहला सिंबल है, साइन है. सेकेंड साइन ये है कि आप कुछ भी करते हैं, आपको एक अलग तरह का खुशी है. आपको ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो हर समय मेरे साथ है. दैट मीन्स आप गुरु के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. द थर्ड साइन ऑफ अ गुरु इज दैट you can start feeling the vibrations, you can start feeling the energies around. That means you are connecting to guru. So the 3 changes if you experience, one is आपका health improve होना शुरू हो जाता है, physical, mental, emotional level पे कोई addiction चली जाती है. Second is that आपको एक हर समय अपने surrounding कोई positive energy feel होती है. एंड द थर्ड इज़ दैट आपको वाइब्रेशंस, आपको अब आसपास की एनर्जीज महसूस होती हैं, आपको अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होती हैं. दैट मीन्स द गुरु इज कनेक्टिंग. दैट इज congratulations if you all feel all these 3 changes. That means you are connecting to guru. Now the next thing is that how do we know that this is a guru or this is a teacher? हमें कैसे पता चलेगा? So there is a difference between a teacher and a guru. और बहुत सारे लोग confused रहते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि ये मेरा टीचर है कि मेरा गुरु है. तो आज हम उस चीज़ को भी समझेंगे. हमें कोई स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे इंट्रोड्यूस करता है या हमें थोड़ा सा पढ़ाता है कोई स्पिरिचुअल चीज़ें, तो हमें लगता है वो ही गुरु है. सो जो टीचर होता है, what the teacher does is that is blesses, the teacher gives us what we want, the teacher gives us what we require and what we don't have, but a guru takes away what is not required. What does this mean? अगर किसी को सक्सेस चाहिए लाइफ में, फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, तो वो टीचर दिलाएगा. कहेगा लो टेक्निक्स, ये लो पढ़ाई, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और सक्सेस मिलेगा. दैट इज़ अ टीचर. बट गुरु क्या कहेगा कि तुम्हारे सक्सेस के रास्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, उसको निकालो
और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड अ टीचर। फिर टीचर क्या कहता है हमें कि वो हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। हमें कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। टीचर कहता है ओके, इसका ये सोल्यूशन है, आप इसको ऐसे सॉल्व करें। गुरु क्या कहता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ही डज नॉट आंसर, गुरु आस्क द क्वेश्चंस। गुरु हमें से खुद क्वेश्चन पूछ के और हमें आंसर निकालना सिखाता है। A simple thing is that if you go to a teacher and say that I am sad and upset because one of my friend has hurt me, so the teacher will say okay, आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, and you will be all right. But जो गुरु होगा वो क्या कहेगा? Why are you sad? Why are you upset? Guru is not going to give you solution. Guru is going to ask you few more questions so that you can find answers on your own. That is the difference between a guru and a teacher. गुरु आपको अपनी लाइफ के आंसर्स खुद ढूंढना सिखाता है, अपने पे डिपेंडेंट नहीं बनाता। एक टीचर को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक टीचर को डिसिप्लिन चाहिए होता है। अ टीचर वॉन्ट्स रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, बट वॉट अ गुरु वॉन्ट्स? गुरु वॉन्ट्स ह्यूमिलिटी, गुरु वॉन्ट्स फेथ। टीचर बारी बारी कहेगा कि डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, टीचर कहेगा मेरी रिस्पेक्ट करो, गुरु कहेगा कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करो, गुरु कहेगा कि फेथ रखो, जो हो रहा है लाइफ में और जो आपको चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। गुरु आपको खुद अपनी लाइफ में फेथ गॉड के साथ कनेक्ट करना सिखाता है। दैट्स अ मेजर थिंग। गुरु अपने साथ नहीं कनेक्ट करता है, गुरु गॉड के साथ कनेक्ट करता है। If you have found a guru like this, be happy, be lucky. Yes, that's your guru. But कोई इंसान आपको आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है, आपको गॉड के साथ नहीं, और ये कह रहा है कि तेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे पास है, मेरे साथ जुड़, मेरे साथ ऐसा कर तो मैं तेरी लाइफ को सॉल्व अच्छा बना दूंगा। That means that is not a guru. याद रखिए, जो आपको गॉड के साथ कनेक्ट करता है वो ही गुरु होता है। Another thing we need to remember that as a teacher is to student, that is a father is to a son. What a guru is to disciple is a mother to her son. What does this mean? एक फादर अपने बच्चे को सक्सेसफुल रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि हासिल करने के लिए सारी टेक्निक्स देता है, वो सारे वेज बताता है जिससे उसका बेटा बहुत सक्सेसफुल बनता है, दुनिया में नाम कमाता है। दैट इज़ अ टीचर। बट जो माँ होती है वो हमारा गुरु होती है पहला, और वो हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। जो हमारी कमी है वो हमारे सामने लाके निकाल के रखती है और हमें एक सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाती है। दैट इज़ अ गुरु। Hope this will help you in differentiating between teacher and a guru. Then the other thing is that how do we find and how to connect with guru? So बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने सुन तो लिया कि गुरु ढूंढना है और गुरु के साथ कनेक्ट करना है, बट हम गुरु को ढूंढे कहाँ से और कनेक्ट कैसे करें? What is the way out? कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गुरु को? It's very very simple. कोई हमें बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तंत्र मंत्र जाप कुछ नहीं करना। एक ट्रू फीलिंग, एक ट्रू इमोशन के साथ आपने सिर्फ ये कहना है कि जो भी मेरे गुरु हैं मेरे सामने अपीयर हो, मुझे अपने दर्शन कराओ। इट विल टेक सम टाइम। That's how it happened with me. I remember I was in, it was the year of 2014. एंड ऑल ऑफ अ सडन मुझे कहीं से पता चला कि जब तक आपका गुरु नहीं मिलता आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल रास्ते पे ग्रो नहीं करते।
तो मैंने पूछा अपनी जो मेरी ट्रेनर थी जिसने मुझे बेसिक प्राणिक हीलिंग का कोर्स करवाया, मैंने उनसे पूछा मुझे बताओ मैं गुरु से कैसे कनेक्ट करूं, क्या कर सकती हूं। उसने मुझे एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया। उसने मुझे कहा कि 40 डेज के लिए दिन रात सिर्फ यही बोल कि कनेक्ट मी टू माई गुरु गॉड, कनेक्ट मी टू माई गुरु, कनेक्ट मी टू द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड माई सोल, bring the guru in form in front of me. And I started doing it with full faith. 20 days तो मैंने ऐसा पक्का अच्छे से बोला। 20 दिन के बाद इंसान का विश्वास थोड़ा हिलना शुरू होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा ही बोला है, ऐसा होगा नहीं। बट मैंने कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, अभी इसी को ही 40 डेज बोला है, कंटिन्यू करते हैं, बोलते हैं। सो आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ चांस टू विजिट वन गुरुद्वारा, और वहाँ पे जो बाबा जी बैठे थे, मैंने उनके पास जाके सिर्फ एक ही बात बोली, बाबा जी मुझे अपने गुरु से मिलना है, कैसे मिलूँ। वो बाबा जी एक अच्छी प्योर सोल हैं और वो खुद गद्दी पे बैठे हैं, बट उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूँ, आजा तू मुझसे अमृत छक ले या मेरे पास आजा। उन्होंने मुझे एक छोटा सा मंत्र दिया और बोला कि अब इसका जाप करो, तुम्हारे गुरु के दर्शन होंगे, वो अपने आप तुम्हारे सामने आएंगे। एंड द अमेजिंग पार्ट वॉज दैट व्हेन आई सैट फॉर अर्हाटिक योगा कोर्स in 2014 in Delhi, Master Choa appeared in front of me. The great Grand Master Choa Kok Sui appeared in front of me and he said that I am your guru. It was an amazing, blissful experience. And if my guru can appear in front of me, your guru, your master can also appear. I am not an extraordinary person, I'm just a simple human. And same is what Yoganand ji has said. उन्होंने भी यही बोला कि मुझे मेरे गुरु दिखाई दें। दिन रात रोया, बैठे रोते रहे, मेरे गुरु के दर्शन कराओ, मुझे तो देखना है गुरु कैसे दिखते हैं, मेरे सामने आए इंसान के रूप में, मैं देखना चाहता हूँ। बस दिन रात उन्होंने एक ही ये बात की और उनको गुरु के दर्शन हुए। So that's what I suggest to everyone. आप अगर 40 डेज दिन रात सिर्फ यही बोल दें कि कनेक्ट मी टू माई गुरु गॉड, bring Guru in front of me, let Guru appear in the form as Guru was on earth, and you will see the magic happening. जिस दिन आपके गुरु आपको कनेक्ट करते हैं और आपको उनके अपने दर्शन हो गए, तो बस लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। And the beautiful part is that actually में गुरुज अपने डिसाइपल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इतना ज़्यादा धरती पे इतना कुछ गलत हो रहा है, डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग, गुरुज वांट टू सेव द अर्थ, वांट टू सेव द ह्यूमैनिटी, और वो तभी सेव होगा जब हम जैसे लोग अपने गुरु के साथ कनेक्ट करके और कुछ अच्छे कर्म करेंगे। बट याद रखिए कि जब गुरु आपको दर्शन देंगे, इसका मतलब आपको कोई सेवा मिलने वाली है। अगर आप सेवा करने के लिए तैयार हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए तैयार हैं, तो आप गुरु के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड दैट्स पॉसिबल, दैट्स रियली पॉसिबल। ऑल यू नीड इज फेथ। गुरु एक विश्वास के साथ आता है और वो आपका विश्वास आपकी लाइफ को एक अलग ही तरह से ट्रांसफॉर्म करके ले जाएगा और आप हैरान रह जाएंगी कि ये क्या हो गया, मैजिक। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस मैजिक, हम सब ने सुना है मैजिक होता है, मिरेकल होता है लाइफ में। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले मिरेकल और मैजिक यही एक्सपीरियंस कीजिए कि गुरु के दर्शन करके। दिन रात उठते बैठते बस मन में एक ही बात तो करनी है कि गुरु मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो। मे बी थोड़ा सा टेस्ट टाइम होगा, बट इट्स ओके। जब गुरु आ गया तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। द लव ऑफ अ गुरु इज़ वंडरफुल। और द बेस्ट पार्ट इज़, जो गुरु हमें प्यार करता है ना, वो हमारी भलाई के लिए प्यार करता है। उसमें कोई मतलब नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। गुरु हमें बस ऊपर उठा के लेके जाना है। तो अगर लाइफ ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, और आप चाहते हैं कि फ्लाइट लेना चाहते हैं, ऊपर चढ़ना चाहते हैं, शॉर्टकट, देन कनेक्ट टू योर गुरु। हमारा देश ही गुरुओं का देश है। सो एंड दिस हैज़ बीन अ ट्रेडिशन फ्रॉम लॉर्ड शिवाज टाइम। सो उसमें बहुत पावर है।
आज के दिन से ही जो इस बात को बोलना शुरू करते हैं, आंख बंद करके सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे गुरु से कनेक्ट करो, 2 मिनट के लिए अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, एंड यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद योर गुरु. रिमेंबर, गुरु आपको गॉड से कनेक्ट करेगा. जो आपको अपने आप से कनेक्ट कर रहा है वो टीचर है, वो गॉड नहीं है. अगर आपको इसके बारे में और जानना है, कोई कन्फ्यूजन्स हैं, कोई डाउट है, यू कैन विजिट आवर सेंटर, योग विद्या प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट ऑफ पंजाब. It's at 308 Shaheed Udham Singh Nagar. You can ask Asta, she can give you details. You can take my details. ऋतु कोचर के नाम से आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं. आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के आ सकते हैं. वी कैन हेल्प यू इन कनेक्टिंग यू विद योर गुरु. और सारे ही गुरु अच्छे होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरा गुरु अच्छा है या उसका गुरु अच्छा है. ऑल गुरुज आर ग्रेट. बहुत बहुत उन्होंने मेहनत की है अपने लिए. उन्होंने फॉरेस्ट में घूम के एक एक कांटा सहा है. तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना सिखाना है कि हमें उस रास्ते पे चलना है. सारी कठिनाइयाँ उन्होंने झेल ली हैं. हमें तो सिर्फ उनके दिखाए रास्ते पे चलना है. एंड वी आर एबल टू कनेक्ट टू आवर गुरु. एक छोटा सा प्रेयर करते हैं, एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं टू कनेक्ट टू आवर गुरु. होप आपको कुछ एक्सपीरियंस हो और इस प्रेयर को आप कंटिन्यू कर पाएंगे. राइट, सो जस्ट सिट विद योर स्पाइन स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन and exhale. Inhale peace. Exhale all the stress. Inhale relaxation. Exhale all the stress. Be aware of your breath. Just feel the movement of the breath. Is it slow? Is it fast? Is it relaxed? Yes, it is. Gently repeat after me. Lord God, kindly connect me to my Guru. Kindly connect me to my spiritual Guru. I am ready to get connected. I humbly invoke my Guru to appear in front of me in the form. Guru, please appear in front of me as you could have been on the earth. I am ready to get connected. I am ready to experience oneness with my Guru. Lord God, lead us from darkness to light, from unreal to real, from chaos to beauty, from death to immortality. Just keep your eyes closed and say, I am receptive, I am conductive to my Guru. I am ready to receive the blessings. I accept the blessings and the presence of my Guru. I am waiting to see the presence of my Guru. I am waiting to connect and experience oneness with my Guru. Tumhiva mata cha pita tumhiva, tumhiva bandhu sakha tumhiva, tumhiva vidya dravidanam tumhiva, tumhiva mam deva tumhiva, tumhiva sarvam mam deva deva. Gently smile and open your eyes.
So you can repeat this prayer as and when you require. If you really have the desire to connect to your Guru, you can. But remember, if you want to transform your life, if you want to come out of all the problems, all the troubles in your life, the only solution is with the Guru. The day you are connected to your Guru, your life transforms. So we hope the session is useful to you. You are able to understand the difference between teacher and a Guru. You are able to understand why do we need a Guru, and you are able to understand how to connect with the Guru and what happens when a Guru enters our life. So these 4 topics have been covered, and if anything has been missed out, you can always watch it again on this page. It will be there, right? You can watch the page. You want to know more details about us, you can ask Asta. You can always connect and do visit our Pranic Healing Center in Jalandhar. Maybe we are of some help to you. Maybe we can help you through introducing to Pranic healing. Maybe we can help you with the healings. It's a natural way. And our teacher mission and vision is just to have heaven on earth. And we are doing all this with the purpose, when the sufferings end, we can have heaven on earth back. So help us in coming out of your problems. Help us in reaching out to more and more people. And that's what the message of Grandmaster Choa Kok Sui, a philanthropist, a scientist, and we have all salutes for our teacher. We are working just with one purpose, that let's get the heaven back on earth. And we need all of you to support us. Try Pranic healing once for any of your ailments and see the difference happening, right? So today, tomorrow, the whole month, and remember the month of Cancer is the month to bring lots of light in your life. This zodiac sign is meant to bring a change in our life. किसी भी तरह का आप पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में चाहते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पे, वो पॉसिबल है. दैट्स द पावर ऑफ दिस मंथ. इसलिए इस मंथ में गुरु पूर्णिमा आता है. तो आज ही से आप कनेक्ट करना शुरू कीजिए, इन्वोक कीजिए अपने गुरु के साथ कैसे कनेक्ट करना है. And all the best, lots of good luck. We hope that you connect with your Guru very fast. Our good wishes are with you, right? Bye-bye. Hope you enjoyed the session. Have a wonderful evening. Enjoy your Sunday. Make the best of it.